आप आंखें बंद कर लोगे, सारा कुछ ही है। सच में आप आंखें बंद करोगे, आपको यूनिवर्स सुनेगा। हाँ, लिस्ट तो बहुत लंबी है और कुछ ज्यादा बड़ी है। ओके, तो अभी बताऊंगा तो फिर लगेगा कि शायद मतलब बड़ी बातें कर रहा है। Today we are talking about a law of attraction case study of the rock star Diljit Dosanjh. Why was he the first Punjabi singer to reach the Tonight Show? Why was he the first Punjabi singer to even perform at the Coachella? Why is he attracting so much success? What about his frequency makes him successful? It's not a coincidence. It's not an accident. He's a master of law of attraction. He practices law of attraction. तो पहला एक ही ड्रीम था कि मैंने मशहूर होना है, सिंगर बनना है। मैं किसी को ना जानता हूँ, दुनिया मुझे जानती हो, ये मेरे दिमाग में था बस। Let's break down his frequency. What is his feeling, thinking, believing, and what is his action frequency that has made him a rock star, that has made him so successful today? Keep watching till the end to understand his frequency so you can also learn how you can have the similar frequency to attract the kind of success this rock star has. Ready? Let's go. Was that an amazing introduction of Diljit Dosanjh? Let's understand what makes him who he is. Why is he attracting so much success in his life? As you know, in my workshops, I say that law of attraction works on frequency. But human beings are not necessarily made of radio frequency like 93.5, right? We don't have buttons. So what is our frequency made of? Our frequency is made of 4 buttons: feelings, thoughts, beliefs, and actions, correct? Now, what is the exact FTBA of Diljit which made him so successful? Let's understand. Let's take one step at a time. Emotions. What's his emotional pattern? If you've learned a little bit about my workshops and law of attraction theories, you know that I say all emotions have patterns. All of us as human beings, we have emotional patterns, emotional habits. See, the emotions that we feel once in a year doesn't matter. जो इमोशन हमको हफ्ते में एक आध बार फील हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. Those emotions matter which we live consistently. Those are called as our habits. Those are called as our patterns. And we want to check why Diljit is so successful. Uska emotional pattern kya hai? What is his emotional habit? Let's look at it. I have personally done some study on him and recognized these 5 emotional habits that he has. First, happy. I love to say law of attraction works for those people who have the emotional pattern of unconditional happiness. What is unconditional happiness? People who can be happy without achieving goals. If you really see all the podcasts of Diljit and all the interviews that he's gone through, you'll see always smiling. Now, it's not easy to smile all the time, especially when you are in limelight all the time. There are so many opportunities for Diljit to show signs of irritation, to show signs of anger, to show signs of sadness. I'm not saying he doesn't have those emotions. I'm saying as a pattern, what do we see? Generally a very happy person. That is what I call as unconditional happiness pattern. What can we learn from this? Think about it. Ask yourself this question: are you happy unconditionally? Or have you put a condition to your happiness कि जब मेरा कोई goal achieve होगा तभी खुश होऊंगा भाई, उसके पहले नहीं. If you could also develop this kind of an emotional pattern, then this kind of success is possible for you too. In fact, think about it. Anybody who's unconditionally happy, ये success आज नहीं तो कल आनी है ना. और नहीं भी आई, कुछ देर बाद आई, you are already unconditionally happy. That is law of attraction. Here is the second emotion that I believe Diljit has. I've seen in many of his interviews, he's very, very humble. Very humble. कई लोग उसकी बहुत बड़ी बड़ी तारीफ करते हैं. He says, thank you जी, thank you. बड़ी दुआ आपकी. And very sweetly, he always appreciates the other person. कोई उसको बड़ा बनाता है, वो सामने वाले को और बड़ा बना देता है. That is his humbleness. That is his feeling of being down to earth. He still believes सब कुछ मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ. In many of his videos, in indirect ways, he says सब कुछ मैं नहीं कर रहा हूँ, universe करवा रहा है. Right? Now, what does that mean? It means he understands somewhere law of attraction that he's not working alone. He's working in partnership with the universe. And that is why he's so humble, because he believes मैं अकेला थोड़ी कर रहा हूँ सब कुछ. Now, those people who believe सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ go from humbleness to arrogance. But फिर क्या होता है? Because arrogance is there, stress is also there. Stress किस चीज़ का? अब सब कुछ खुद ही करना है. I have to prove to the world that I'm successful. Ask yourself, what can you learn from this? Are you ready to be humble? Are you ready to surrender to the universe and believe that, yes, मेरे साथ मेरा universe है, and I'm not alone. And when you realize that, you know that our role is very small. अपना role बहुत छोटा है. And that is why you and I can also be humble like Diljit. Make sense? That is why he is who he is. The third emotional pattern that I have seen about him is generosity. He's very generous.
He's someone who believes in giving. I remember in one of his interviews, he said, what was her name? I think Sucharita ji. So Sucharita Tyagi was the reporter who was interviewing him, and she asked him that, how come you came on our podcast? And I remember he said कि आपकी वजह से ही तो मैं टुनाइट शो पे पहुंचा हूं. And she said, what do you mean? And he said कि बहुत टाइम पहले आपने मेरा एक रिव्यू किया था, और उस रिव्यू के बाद में आपने मेरे बारे में बोला था कि मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर दिलजीत एक दिन टुनाइट शो पे पहुंच जाए. और वो मैंने देख लिया था आपका इंटरव्यू, और उस रिव्यू की वजह से मेरे दिमाग में मैंने बैठा लिया, हाँ मुझे टुनाइट शो पे जाना है. एक और इमोशनल पैटर्न यहाँ पे पता चलता है, ओपन टू लर्न. देखो, किसी ने उसके बारे में कुछ बोला, कोई बड़ी बात बोली, उसने ये नहीं सोचा नहीं यार ऐसे कैसे ये हो जाएगा, ये तो बहुत बड़ी बात है, क्या बोल रही है. ही डिडंट थिंक लाइक दैट. ही वाज ओपन टू लर्न. ही टुक इट टू हिज हार्ट एंड ही केप्ट इट एज अ मैनिफेस्टेशन, एज अ फीलिंग कि ये एक दिन हो जाएगा. एंड जिस दिन हुआ, व्हेन ही केम टू द टुनाइट शो, he remembered to give a podcast interview to Sucharita. So she asked him, if you watch that interview, she asks him, how did you agree to this podcast? And he said, हम वैसे तो बहुत सारे पॉडकास्ट नहीं करते सबके साथ, लेकिन आपके साथ करना चाहते थे क्योंकि आपने कहा था हमारे बारे में कि हम टुनाइट शो पे पहुंचेंगे, और मुझे वो बात याद थी. It was his way of saying thank you to her. That means he has an emotional pattern of what? Gratitude and open to learn. Isn't that amazing? सोचो, अगर हम भी इस तरीके से लोगों को छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंक यू बोलना शुरू कर दें, एंड इफ़ वी आर ऑल्सो ओपन टू लर्न, अगर हम लोगों से सीखना भी शुरू कर दें, कितना आसान हो जाएगा इस तरह की सक्सेस को अट्रैक्ट करना. बिकॉज व्हेन यू वाइब्रेट एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज इमोशनल पैटर्न्स, सेम अट्रैक्शन विल हैपन विथ यू. कैसे होगा? राइट अपॉर्चुनिटीज विल कम. आप सोचो, ये कोचेला का जो इतना बड़ा परफॉर्मेंस का अट्रैक्शन हुआ, ऐसे ही थोड़ी हो गया. द टुनाइट शो का इन्विटेशन ऐसी थोड़ी हो जाता है. जब इंसान सालों ऐसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है, तब जाके ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती है. डज दैट मेक सेंस? अब आगे बढ़ते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड नॉट ओनली हिज इमोशनल पैटर्न, लेट्स अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ हिज थिंकिंग. कैसे सोचता है ये इंसान? ही इज अ रॉक स्टार, बट ही इज ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग. ही ऑल्सो हैज थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, एंड ही हैज बिलीव्स. Let's understand what are his thinking and belief patterns that makes him who he is. Why is he so successful? Why is he so happy? Why is he so generous? ये जो इमोशनल पैटर्न्स अभी हमने बात किए, उसको सपोर्ट करने के लिए बिलीव्स भी तो चाहिए, वैसी थिंकिंग भी तो चाहिए, राइट? सो वन ऑफ हिज थिंकिंग पैटर्न्स दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज ही इज अ वेरी बिग थिंकर. Watch his interviews. I remember in his interviews one time a reporter asks कि in fact even a podcaster, I remember watching a couple of his videos where they ask him कि और क्या करना चाहते हो, and I remember he says तो बहुत बाकी है जी, अभी तो बहुत लंबी लिस्ट है हमारी. But again, in the way he says it is not arrogant, very humble. He believes in thinking big. In fact, I remember one person had asked him कि आपने ऐसा सोचना कब से शुरू किया? And he says, बचपन से जी, छोटे थे तब से हमारी ये सोच थी कि हमको इतना बड़ा करना है, ये सब करना है. I mean, just think of this guy thinking so big. What can we learn from that? कम से कम सोचना तो शुरू करो. एक नोटपैड लो आज और लिखो जिंदगी में क्या अचीव करना चाहते हो, और जितना बड़ा सोच सकते हो सोचो, विदाउट इवन थिंकिंग होगा नहीं होगा, आज होगा कल होगा, क्या फर्क पड़ता है, सोचने में क्या जाता है. इन मैनिफेस्टेशन टेक्निक वी से एक विश लिस्ट बनाओ तो सही, एक किताब बनाओ वेर यू राइट डाउन एज मेनी विशेस एज यू वांट विदाउट द कंडीशन के अब होगा कि कब होगा कि होगा कि नहीं होगा. वर्क ऑन इट एंड आई एम टेलिंग यू, ये फ्रीक्वेंसी से इंसान के लाइफ में सक्सेस अट्रैक्शन होना ही होना है. दिलजीत इज एन लाइव केस स्टडी ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर दिस. I'll tell you one more of his belief patterns, which is amazing, which perfectly fits with the formula of law of attraction. What is the formula of law of attraction that I have taught you many times? Feel, think, believe, and act as if it is already done. Correct? Let's see how Diljit is following this. Amazing answer he gives. He says, वो तो जी हो चुका, हमारे दिमाग में तो हो चुका, आप देखोगे अभी तो, हमारे दिमाग में तो कब का हो चुका जी. And he didn't specifically, I think, use these words. My words are a little rephrased. But this is exactly what he said कि मेरे हिसाब से तो हो चुका है, आप देखोगे. And I remember this is exactly the frequency that I worked on many years ago when I started applying law of attraction, learning from my mentor. Feel, think, believe and act as if it is already done. For many years, he never doubted himself. He believed कि एक दिन होगा, बस काम करता गया, मेहनत करता गया. That reminds me one of his other emotional patterns and belief pattern. One of the most powerful patterns he has is loves his work more than the money.
हमारे वेल्थ मास्टरी कोर्स में हम सिखाते हैं पैसे की फ्रीक्वेंसी उसके पास ज़्यादा आती है जो काम से ज़्यादा प्यार करता है पैसे से बाद में। क्यों? पैसा आता कब है? जब आप किसी को काम से कुछ सर्विस देते हो, जब किसी के लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करते हो। दिलजीत स्ट्रांगली बिलीव्स आई वांट टू इन्वेस्ट मोर इन माय वर्क, बाद में बाकी चीज़ों में। एंड ही सेज मुझे पैसे से लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज, ये सब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं खरीदनी, मुझे ये सारा पैसा लेना है, कमाना है और उसको वापस से प्रोडक्शन में डालना है ताकि मैं और अच्छा काम कर पाऊँ। सोच देखो, बिलीव देखो कि मुझे काम पे ध्यान देना है, मुझे और बड़ा काम करना है, मुझे ये पैसा लेके और बड़े काम के अंदर इन्वेस्ट करना है। क्यों करना है? ही लव्स हिज वर्क। आस्क योरसेल्फ, इज दिस हाउ यू थिंक अबाउट योर वर्क, और डू यू थिंक ऑफ योर वर्क ओनली एज अ मीडियम टू मनी? फिर क्या होता है, हम पूरा टाइम पैसे के बारे में सोचते रहते हैं। वी फील डेस्परेट ऑल द टाइम। इन हिज केस ही इज नॉट डेस्परेट, इनफैक्ट ये जितना कमा रहे हैं उतना वापस से काम में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इजंट दैट अमेजिंग? If you start having this belief that I want to keep investing more and more in my work, I love my work, then you'll observe one of the other patterns that he has is the pattern that he believes in being consistent. He was asked at what age did he start working, and believe it, he said he started working at the age of 11. 11 साल की उम्र में बोले मैंने तबला सीखना शुरू किया। 17 साल की उम्र तक तो पहला एल्बम बना चुके थे और सिर्फ साइन करना बाकी था कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि 18 साल के हुए नहीं थे। तो जिस दिन 18 साल के हुए उस दिन साइन किया और वहाँ से उनका पहला एल्बम रिलीज हुआ। एंड आई रिमेंबर उनको पूछा गया था कि इतने सालों बाद आज आप इतने सक्सेसफुल हो गए, आपको कैसा लग रहा है? तो बोलते मैं तो ये काम तो मैं सालों से कर ही रहा हूँ जी, आपको अब नज़र आ रहा है, मुझे तो उतना ही अच्छा सालों से लग रहा है। अगेन प्रूव्स टू मी हिज वर्क मेक्स हिम हैप्पी फॉर मेनी ईयर्स। दिस फेम हैज़ नॉट मेड हिम हैप्पी. Of course, he appreciates it. Of course, he's grateful for it. But what he's really more grateful about is his work. And that is why he's so consistent at it. अगर आप किसी काम से प्यार नहीं करते ना तो उससे कंसिस्टेंट नहीं हो सकते, क्योंकि आपको हमेशा एक डेस्परेशन रहेगी कि इससे रिजल्ट कब आएगा. I'll give you an example. I know a friend of mine who has already changed 3 careers. पहला, he got into acting. साल भर एक्टिंग की, सक्सेस नहीं मिली. जब शुरू किया था तो बोला मुझे एक्टर बनना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है. और जब सक्सेस नहीं मिली तो साल भर के बाद में बोला ये मुझसे नहीं होगा. अब हुआ क्या, साल भर में एक्टिंग करते करते बॉडी बना ली थी. तो उसको क्या लगा कि मेरा जो शौक है वो बॉडी बनाना है, तो आई विल बिकम अ बॉडी बिल्डर कोच. अब उसने एक जिम चालू कर लिया और लोगों को कोच बन के एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया. बट मानो या ना मानो, साल भर के बाद में वो करियर भी चेंज कर दिया. अब बोल रहा है कुछ और करना है. एंड आई कीप सेइंग दिस टू पीपल, व्हेन यू डोंट गेट योर रिजल्ट्स, दैट इज द प्रूफ दैट यू डोंट लव योर वर्क. आपके प्यार का प्रूफ तब पता चलता है अपने काम पे जब आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है. अगर तब आप काम करते रहे तो इसका मतलब है कि आपको उस लाइन से, उस काम से, उस करियर से प्यार है. तभी तो जाके दिलजीत बना है. डज दैट मेक सेंस? ऐसे बिलीव्स आप डेवलप करो और फिर देखो जैसी सक्सेस उसकी लाइफ में आई है आपकी भी लाइफ में आएगी. अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी टुनाइट शो पे पहुंच जाओगे, ये नहीं कह रहा हूं मैं. आप वो पाओगे जो आपकी सोच है. जितना बड़ा आप सोच पाओगे उतना आप पाओगे. शायद आप दिलजीत से आगे भी निकल जाओ, क्या फर्क पड़ता है. बट पता है मजे की बात क्या है, दिलजीत जैसे लोग खुद के बारे में ऐसा सोचते हैं कि वो आगे पीछे सोच ही नहीं रहे. कौन उनसे आगे निकल गया, कौन उनसे पीछे निकल गया. दे आर बिजी लविंग देयर वर्क. इनफैक्ट अब उसकी एक्शन फ्रीक्वेंसी पे आते हैं. रिमेंबर मैंने कहा था 4 बटन है, फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स एंड एक्शंस. हमने उसके 5 इमोशनल पैटर्न्स देखे, है ना. फिर बिलीफ पैटर्न्स देखे 3. अब एक्शन फ्रीक्वेंसी देखते हैं. एक बहुत बड़ी एक्शन फ्रीक्वेंसी है जो मेरे हिसाब से मेक्स हिम सक्सेसफुल होलिस्टिकली. लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हमारे कोर्स में मैं हमेशा कहता हूं, जब भी एफर्मेशन बनाओ तो 4 एरियाज के लिए बनाओ. HRCM. व्हाट डज दैट मीन? हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी. क्यों? हमारी लाइफ एक गिटार की तरह है. ये एग्जाम्पल अभी सही फिट हो रहा है क्योंकि हम सिंगर की बात भी कर रहे हैं. तो लाइफ एक गिटार की तरह है, 4 स्ट्रिंग वाली गिटार, जिसमें HRCM ये चारों स्ट्रिंग के नाम हैं. अब अगर उस गिटार के ऊपर आप एक ही स्ट्रिंग बजाओगे तो म्यूजिक नहीं, आवाज आएगी. यू विल नॉट गेट म्यूजिक, यू विल गेट नॉइज. दैट इज व्हाई यू मस्ट ट्यून ऑल द 4 स्ट्रिंग्स. यू मस्ट यूज ऑल द 4 स्ट्रिंग्स, तब जाके म्यूजिक आएगा. दैट इज व्हाट आई बिलीव इन, मेकिंग एफर्मेशंस फॉर ऑल 4 एरियाज ऑफ लाइफ. तब जाके सक्सेस मिलती है, अट्रैक्शन होता है, होलिस्टिक सक्सेस. वरना सक्सेस का कोई मतलब नहीं. मान लो किसी के पास करोड़ों रुपए हैं दिलजीत की तरह, पर कैंसर हो जाए, कैंसिल, क्या फायदा? दैट पैसा इज मीनिंगलेस. मान लो किसी के पास करोड़ों रुपए है, हेल्थ बहुत अच्छी है, बट रिलेशनशिप में किसी से नहीं बनती. दोस्तों से बात करते हुए दोस्त हमसे रिलेट नहीं कर पाते, हम लोगों से रिलेट नहीं कर पाते, अंदर पूरा टाइम अकेलापन फील होता है.
ऐसा पैसे और ऐसे सक्सेस का क्या करूँगा, करेक्ट? तो क्या चाहिए ज़िंदगी में? हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर या पैसा? चारों चाहिए बॉस, चारों। एंड दिलजीत इज समवन हुम आई हैव ऑब्जर्व्ड इन हिज एक्शन फ्रीक्वेंसी, चारों एरिया पे फोकस करते हैं। एक्शन फ्रीक्वेंसी में हेल्थ बताता हूँ, योगा करते हैं, डाइट करते हैं, वर्क्स आउट रेगुलरली। कैसे पता? एक तो उनके इंटरव्यूज में उन्होंने बोला है, बट सबसे बड़ी बात ना, मुझे लोग पूछते हैं कि फ्रीक्वेंसी कैसे पता चलती है आपको इतनी जल्दी देख के? अरे लोगों के रिजल्ट देख के फ्रीक्वेंसी पता चलती है। जो आपके लाइफ में है उससे पता चल जाता है आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, क्योंकि जो आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं है वो आपके लाइफ में आ ही नहीं सकता, और जो आपके लाइफ में है वो गारंटी आपकी फ्रीक्वेंसी है, चाहे वो पॉजिटिव रिजल्ट हो या नेगेटिव रिजल्ट हो। दिलजीत की बॉडी देख लो, उसकी हेल्थ देख लो, ही इज हेल्दी। आई एम नॉट सेइंग ही नेसेसरली हैज एब्स, बट ही इज हेल्दी, ही इज फिट, ही इज एबल टू परफॉर्म फॉर सो मेनी आवर्स। आसान थोड़ी होता है स्टेज के ऊपर घंटों परफॉर्म करना, इतना ज़्यादा ट्रैवल करना और फिर भी मुस्कुराते रहना। इमोशनल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ दोनों फिट लेके चल रहा है बंदा। दैट इज वाई आई बिलीव ही इज फोकसिंग ऑन होलिस्टिक सक्सेस, HRCM। लेट्स लुक एट हिज रिलेशनशिप्स। अब रिलेशनशिप लोगों को लगता है कि हमेशा इज ओनली अबाउट मैरिज, आप बोलोगे लेकिन दिलजीत की रिलेशनशिप के बारे में तो आपको कुछ नहीं पता। सच में नहीं पता, लेकिन ये पता है कि जिस तरीके से दिलजीत रिश्ते बनाता है, जिन लोगों से मिलता है, जिस तरीके से लोगों को ट्रीट करता है, उसके साथ उनका एक रिश्ता बन जाता है। एग्जाम्पल, अगर आप ये जितने रीसेंट इंटरव्यूज दिलजीत के देखोगे, कुछ इंटरव्यूज में तो उसने बहुत प्यार से जाते जाते लोगों को बुलाया, अपने परिवार को मेरी तरफ से बहुत प्यार देना जी, थैंक यू, आपने हमें इनवाइट किया, बहुत अच्छा लगा जी, आपको हमारी तरफ से बहुत प्यार। इतने हम्बल तरीके से प्यार की बात करता है, क्यों? ही बिलीव्स इन रिलेटिंग, ही बिलीव्स इन क्रिएटिंग रिलेशनशिप। एक एग्जाम्पल देता हूँ, उसके एक इंटरव्यू में जहाँ पे सुचरिता उनको पूछ रही थी, नहीं सुचरिता नहीं, एक दूसरा इंटरव्यू था पॉडकास्ट में, पॉडकास्टर पूछ रहा था, मेरे ख्याल से राज शमानी पूछ रहा था उसको कि आप इन न्यू कमर्स के साथ कैसे काम कर लेते हो, आपका इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा ब्रांड है, आप ऐसे न्यू कमर्स के साथ कैसे काम कर लेते हो? आई रिमेंबर ही सेड, मैं भी तो एक ज़माने में कुछ नहीं था, तब मुझे किसी बड़े आदमी ने मौका दिया था, आज मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं किसी और को मौका दूं। और ये लोग, और फिर वो आगे ये भी कहता है कि मुझे तो इन लोगों को कई बार देख के लगता है ये लोग तो मुझसे भी अच्छा गाते हैं। लुक एट द ह्यूमिलिटी अगेन, है ना? तो बिकॉज ऑफ दैट ही वर्क्स विद पीपल, बिकॉज ही बिलीव्स इन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। सो इफ यू थिंक अबाउट इट, हेल्थ भी सही है, रिलेशनशिप भी सही है, करियर तो आप जानते ही हो, पैसा तो आपके सामने है। सो व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज ही हैव टुडे? ओनली हेल्थ? नहीं। ओनली रिलेशनशिप? नहीं। ओनली करियर और मनी? नहीं। चारों है। आस्क योरसेल्फ, आर यू वर्किंग ऑन योर HRCM एक्शंस एवरी डे? क्या आज आप जॉब करते समय, बिजनेस करते समय, पैसा कमाते समय रोज योगा करते हो, रोज एक्सरसाइज करते हो, रोज डाइट कर रहे हो? और अगर नहीं, और अगर दिलजीत की तरह सक्सेसफुल बनना है, वैसी फ्रीक्वेंसी बनानी है, तो उसकी तरह एक्शन फ्रीक्वेंसी पे भी काम करो, चारों पे एक्सरसाइज करना शुरू करो। जरूरी नहीं कि योगा करो, आप अपने मनपसंद का एक्सरसाइज करो। कुछ लोग डांसिंग करके एक्सरसाइज करते हैं, जिसको जुम्बा भी बोलते हैं। यू डिसाइड, बट वर्क ऑन योर हेल्थ, because when your body is healthy, your mind is healthy, it's both connected. Work on your emotional health also. Relationships पे काम करो। हम ना बहुत सारे लोग कई बार करियर और पैसे में इतने बिजी हो जाते हैं कि पेरेंट्स को टाइम नहीं देते, फ्रेंड्स को टाइम नहीं देते। आस्क योरसेल्फ, क्या आपके पेरेंट्स और दोस्त ये कंप्लेन कर रहे हैं कि आप उनको टाइम नहीं देते? देन मेक श्योर दैट यू स्टार्ट गिविंग देम टाइम। आई रिमेंबर दिलजीत उस दिन एक इंटरव्यू में बोल रहा था कि अभी भी मैं देश से बाहर जाता हूँ ना, तो मुझे लगता नहीं भाई मुझे अपने देश वापस आना है, आई लव माई कंट्री। बोलता है मुझे ना थोड़े दिनों के बाद में जब बाहर बहुत दिनों बाहर देश बाहर रह लेता हूँ, तो बोलता है मुझे मेरी घर की गलियाँ याद आ जाती है, रास्ते नज़र आने शुरू हो जाते हैं। इसे आई मिस माई पीपल, आई मिस माई प्लेस, वापस आ जाता है। क्यों? रिलेट्स टू पीपल। स्टार्ट बिल्डिंग योर रिलेशनशिप्स, एक्शन में दिखाओ, सिर्फ एफर्मेशन बोल के फ़ायदा नहीं है, साथ में एक्शन फ्रीक्वेंसी पे भी काम करो। करियर में काम से प्यार करो, पैसे से ज़्यादा उस काम से प्यार करो जिससे पैसा आता है। लर्न टू गिव वैल्यू टू द पीपल हु गिव यू मनी, लोग आपको अपने आप पैसा देंगे। आई होप यू लव्ड टुडेज केस स्टडी ऑन दिलजीत दोसांझ। फॉर मी इट वॉज अ प्लेजर वॉचिंग हिम इन हिज इंटरव्यूज, इट वॉज अ रियल प्लेजर रिसर्चिंग ऑन हिम कि कैसे उसकी फ्रीक्वेंसी ने उसको आज बनाया जो वो बन चुका है। कुछ टाइम बाद आई होप कि एक दिन मैं आपके ऊपर एक इंटरव्यू करूं। लेट्स कीप दैट मैनिफेस्टेशन। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर डालना, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम टुडेज लॉ ऑफ अट्रैक्शन केस स्टडी? कौन इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे सक्सेसफुल बना? अगर आप ऐसे किसी केस स्टडीज के बारे में जानना चाहते हो, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डू माई बेस्ट टू डू सम रिसर्च एंड ब्रिंग यू दोज केस स्टडीज ऑन पीपल, ऑन ऑर्गेनाइजेशंस, ऑन कल्चर्स। Keep practicing law of attraction, and if you want to learn more in detail with me as a coach, come and click on the link below in the description.
वहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा। साइन अप क्विकली, क्योंकि एक फ्री वेबिनार है, एक फ्री मास्टर क्लास है जिसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। एंड आई प्रॉमिस यू, जितना आज सीखा ना उससे 10 गुना ज़्यादा उस फ्री मास्टर क्लास में सीखोगे। प्रॉमिस है मेरा। करके देखो, बिकॉज आई डेफिनेटली लव माई वर्क द वे दिलजीत लव्स हिज वर्क। आई होप यू कैन फील दैट इन द वे आई कम्युनिकेट दिस टॉपिक टू यू एंड द कॉन्टेंट इन माई मास्टर क्लास व्हेन यू ज्वाइन फॉर फ्री। See you soon over there. और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलो. Hit the bell icon so that the next time I bring a law of attraction case study like this, you definitely get an email from me. Did you like today's video? Give it a quick thumbs up and share this with at least 3 of your friends who also want to learn how to be successful like Diljit. See you soon in the next video.